Good morning, students. Today we are going to learn about a new chapter, that is physical and chemical changes. In standard 6, you have learned about one chapter, that is changes surrounding us, in which you have studied many things like how uh, changes can be taken place, or how some changes occurring on their own. So same thing we are going to learn in detail, and we will name these changes uh, in terms of physical change or in terms of chemical change. Okay. So every day you come across many changes in the surrounding, and this change may involve one or more substances. So you have seen many changes. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. So making a sugar solution is a change. ठीक है, हम अगर डिज़ोल्व करेंगे शुगर को वाटर में, सो देर इज़ वन चेंज. व्हाट इज़ द चेंज? दैट sugar convert into dissolved form. Okay. Similarly, setting curd from milk is a change. So some changes may be reversible, some may be irreversible, which we have studied in standard 6. Now we are going to divide these changes in terms of physical changes and in terms of chemical changes. Okay. So you have to perform that activity which changes you observe in your daily life, and you have to list 10 changes. It may be reversible, irreversible, it upon you which you want to show. Okay. इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है. सो हियर इज़ वन एक्टिविटी अबाउट फिजिकल चेंजेस. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay down these pieces on floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece. Obviously you cannot join these pieces back, but there is a change in the property of substance. So what this activity say? You have to cut this paper. आपको पेपर को कट करना है और उसे इस फॉर्म में लाना है. ठीक है. उसके बाद आपको इसे क्या ग्राउंड पे रख देना है. तो क्या ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा? मतलब हमने जो 1 में से 4 पीसेस किए थे, क्या वो रिवर्स बैक होंगे? नहीं, वो नहीं हो सकता. बट येस, वी कैन हैव सम चेंज. कोई चेंजेस दिखा? 1 में से एक पीस में से यहाँ 4 पीस हो गए. सो देयर इज़ वन चेंज. So we can say that one physical change take place. ठीक है. Second activity: collect the chalk dust lying on a floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add little water to dust to make a paste. Roll it into the shape of piece of chalk. Let it dry. Did recover chalk from a dust? So what this activity says? आपको चॉक पाउडर कलेक्ट करना है. यू कैन डू इट बाय कलेक्टिंग डस्ट फ्रॉम द chalkboard, or you have to crush a small piece of chalk into dust. Now you have to add water to the dust and make a paste. Then you have to make such a paste that it can form, you can roll it and give one shape. After that you have to make it dry. Can you recover your chalk? Yes, you can. आपको फिर वो चॉक वापस मिलेगा? तो हाँ, मिलेगा. तो कैन वी से अ फिजिकल चेंज? येस, वी कैन से. हाउ? आपने पहले इसका चॉक का पाउडर किया, सो दैट इज़ फिजिकल चेंज. देन उसमें पानी डाल के उसको रोल करके उसको एक प्रॉपर शेप में लाए. सो वो डस्ट में वो भी एक चेंज हुआ. पाउडर में से वापस आपने उसको सॉलिड बनाया. सो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज. ठीक है. सो येस, वी कैन से अ चेंज. Activity 3: take some ice in a glass or a plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing tumbler in sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? So what here
व्हाट इज सेड हियर, आपको आइस लेना है इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर. यू हैव टू मेल्ट सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग इन अ सन. आपको उसको फिर सन में रखना है थोड़ी देर, आधा घंटा, तो वो थोड़ा लिक्विड, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहेगा. तो ये एक फ्रीजिंग सॉरी ये एक फिजिकल चेंज हुआ. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मिक्सचर है आइस वाटर का, उसको वापस हमें उसमें क्या मिक्स करना है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. हमें यहाँ पे आइस और कॉमन सॉल्ट की जगह हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं. तो ये आइस वाटर का मिक्सचर है जो हमने सनलाइट में रखा था, उसे हम वापस फ्रीज में रखेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे भी एक फिजिकल चेंज हुआ. अभी एक और एक्स्ट्रा मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आइस प्लस कॉमन सॉल्ट क्यों लिया है. तो कॉमन सॉल्ट जब हम आइस के साथ मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा. टेम्परेचर डिक्रीज़ होना मतलब कि उसका ये फ्रीज़ होता है. ये आप अगर बीएससी में अगर आप आगे जाओ तो ये सब पढ़ने में आएगा, बट मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि इसमें होता क्या है. जो आइस है उसमें हम कॉमन सॉल्ट यानी नमक ऐड करेंगे. अब घर पे भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो. तो इफ़ यू डू दिस एक्टिविटी देन उससे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जिससे इसका फ्रीजिंग जल्दी होता है. मतलब जो ये फ्रीजिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है. ठीक है, आपने अगर एक्टिविटी की हो तो मैं आपको बताती हूँ. एक आइस लेना है आपको, आइस क्यूब, उसके ऊपर एक थ्रेड रख देना है. देन यू हैव टू पुट सम सॉल्ट ऑन इट. ठीक है, सॉल्ट रख दोगे तो उसके बाद उस थ्रेड को आप उठाने का ट्राई करोगे तो वो उठेगी. 2-3 मिनट रुकना, वो उठेगी, उसके साथ चिपक जाएगी. क्यों चिपक जाएगी? बिकॉज उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और वो क्रिस्टलाइज हो गया उसके साथ, जिससे वो जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ. तो ये एक्टिविटी शायद आप लोगों ने कहीं की होगी या देखी भी होगी, बट उसका एक्चुअल यूज़ यहाँ पे है कि एग्जैक्टली होता ये है. मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बट यू हैव टू हियर अंडरस्टैंड ओनली दैट आइस में से हम पहले लिक्विड में गए, हमने सन के आगे रखा तो ये मेल्ट हुआ, वो एक फिजिकल चेंज है. वापस उसको फ्रीज़र में रखा, या तो उसमें आइस प्लस कॉमन सॉल्ट मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा कन्वर्ट होगा आइस में. तो ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ. इन शॉर्ट, these three activity says that physical change take place by doing some work or by some activity. Now you can do another activity here. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from surface of water? So yes, आपने गर्म पानी कभी किया होगा, तो उसमें से जब पानी गर्म होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है. होल्ड एन इन्वर्टेड पेन ओवर द स्टीम. सो आपको उसके बाद एक पेन रखना है. अगर आप पेन ना रखो, डायरेक्टली एक लीड रख दो, तो शायद देखा भी होगा, कईयों ने किया भी होगा कि जब गर्म पानी हो रहा है उसमें से स्टीम निकल रही है और उस पर हम लीड रख दे या तो पेन रख दे, उसके बाद थोड़े डिस्टेंस पे, तो हमें वो जो स्टीम है वो वहाँ जो लीड से टकराएगी और उससे धीरे धीरे बॉइलिंग वाटर है, स्टीम में से बॉइलिंग वाटर में वो कन्वर्ट होगा. सो ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पेन. और एक दूसरी चीज़ भी होगी ये पेन में, कि अगर हम पेन रखेंगे इन्वर्टेड पेन, तो वो स्टीम है बॉइलिंग वाटर में से वहाँ पे जाएगी और इससे हमें इनर सरफेस पे ड्रॉपलेट्स में मिलेंगे. तो ये कैसे होता है? तो फर्स्टली इसमें हुआ क्या है, वाटर लिक्विड फेज में था, उसको बॉईल किया तो उसमें से वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ गैशियस फॉर्म में. आफ्टर दैट हमने उस पर एक लीड रख दिया,
तो वो स्टीम उसको टच करेगी और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, और उससे वो गैशियस फॉर्म दैट इज स्टीम से वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, नाउ we will see activity 6.5 in our next lecture. Till then you have to do all this activity, or you have to list down some changes. Thank you.